Hello guys, welcome to Vikrant Tech, and today we have Ice River KS5L. So guys, here are the specifications of the miner. This miner works on 12 terahash and the algorithm is K heavy hash and the power consumption is 3400 watt. Let's have a look on the mining revenue comparison. This machine can mine Caspa coin and it can also mine Cedra coin, Bugna and all other relevant coins which works on K heavy hash algorithm. And here are the list of top 10 pools for the Caspa mining. So the hash rate is 12 terahash and the power consumption is 3400 watt. So the 24 hours total production it can mine around 244 Caspa coins in 24 hours. And the current price for the Caspa coin is around 17 cents. So the total generation of this machine is approximately $43.80 in 24 hours. So the electricity cost at 10 cents per kilowatt is around $8. And the total profit after paying your electricity cost is $35. So guys, this is the front profile. These are the two front fans and this is the Ethernet port. This is the IP report button and the reset button. On the right side we have the power supply of the machine. This is the right profile of the miner. This is the left profile. This is the back profile. Guys, we have connected the LAN cable. Now we will connect the power cord. This is the power cord interface. Now the cable setup on this machine is completed. Let's boot the miner and let's go back to the computer screen. Guys, before turning on the miner, please make sure that steel grills are not touching the fan blade. Guys, we will use this software by the name of Advanced IP Scanner in order to find the IP of the machine. I have downloaded the same on my computer already. We will scan the IP. Make sure your device and the machine are connected with the same Wi-Fi router, then only you will be able to get the IP of the machine. And guys, if you are doing the configuration on your mobile phone, you can use this app by the name of Fing Network Tool in order to find the IP of the miner. So guys, as you can see, we have found the new IP by the number 192.168.0.152 Asian RF Limited. And once you open that IP in the Google Chrome browser, you will come to the console page of Ice River. Guys, the default username and password for all Ice River machines are admin and the password is 123456789. So once we hit login, it's showing an error. Let's try till 8 and we are in. So the password is 123456788. So this is the console page for our Ice River KS5L 12 terahash machine. This machine have 3 hash board and it has been already configured on the Ice River settings. So now what we will do, we will gonna go to the mining and we will change the pool settings here. So we have two options. Either we can connect our machine on F2 pool or we can connect our machine on NiceHash so that we can directly mine Bitcoin using this machine. However, the NiceHash will gonna mine Caspa coin with this machine, but they will convert the same into BTC and make payment in the Bitcoin only. So guys, here are the mining pool URL for the NiceHash. We will copy the same into the machine and test it. Guys, as you can see, I have entered the NiceHash URL there, and now I will change the wallet/worker from Caspa coin to BTC wallet address because NiceHash will gonna pay us BTC. Once you have done this, you can click on save and the settings will be applied. Now as you can see, the machine has been connected with the NiceHash pool and it has been connected. The shares are being accepted and the priority is 1. That means the mining is going on right now. So on the lower side there are 3 hash boards on this machine, 1, 2 and 3. Each hash board have a chip temperature of 67, 62, 63, which is very normal on KS5L. However, it was very high on the same numbers were very high on the KS3M 6 terahash machine, but this machine can tolerate up to 75 and up to 80 degree as well. So on the lower side there we have the fan speed which are automatically adjusted by the control board of the machine. So guys, as you can see, the miner has been working from past 9 minutes and it has already reached 11 terahash. So it will take some time, around 30 minutes to reach the complete hash rate. And let's go to the miner and see how it does it look when it's hashing. So guys, as you can see, the green light is blinking on the miner and it is hashing. There is a solid green light on the power supply of the machine.
So guys, as you can see, after 11 minutes the miner has reached the complete hash rate of 12 terahash. So here we have 12,000 GHS, which means 12 terahash. So here are the hash rate and the temperatures we are getting right now. Guys, make sure you protect your miner from the dust and the moisture, and regularly clean your miner in every 15 days or earlier than that, depending on the dust in your area. So the miner is working perfectly fine on 12 terahash. Guys, if you want to purchase this miner, you can contact us on our website vikrantech.com and vikrantech.in, and there is a WhatsApp number given in the description box below. So you can contact us if you want to purchase it. We will help you to set it up on your account, pool, exchange, and the miner will be delivered at your door. So guys, from here on I will continue with the Hindi audio version of this video. So if you want to pause this video and close the video, you can do. So from here we will continue the Hindi version of this video. हेलो गाइज़, वेलकम टू विक्रांत टेक। और आज हम आपके लिए लेके आई हैं आइस रिवर की KS5L मशीन, जो कि आपकी कैस्पा की माइनिंग करती है और K हैवी हैश एल्गोरिथम पे चलती है। ये मशीन का जो हैश रेट है वो 12 टेरा हैश का है और जो पावर कंजम्पशन है वो 3400 वाट का है। तो 3.4 किलोवाट का आपका पावर कंजम्पशन हो गया। महीने में लगभग 2000 से लेके 2400 यूनिट के बीच में ये मशीन आपकी खींच सकती है। ठीक है जी। और ये देख सकते हो मशीन, ये हमारी फ्रंट साइड है। आगे हमारी यहाँ पे हमने लैन केबल कनेक्ट की हुई है, Cat6 लैन केबल, और ये हमारी पावर कॉर्ड है। ये पावर कॉर्ड का इंटरफेस है हमारा, जो हमने माइनर के यहाँ पे लगाई हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मशीन की जो गर्म हवा है वो डायरेक्टली आपकी विंडो से बाहर चली जाए। रूम के बीच में रख के आप मशीन को कभी मत चलाना। और गाइस, जो आपकी माइनर की जो पावर केबल है उसको आप डायरेक्टली MCB में कनेक्ट कर दो, वरना तो वो जो आप यदि ऐसे सॉकेट में लगाओगे तो वो आपका जलता रहेगा, तो उसमें आपको नहीं लगाना। आप जो है 20 एम्पियर की एक MCB ले सकते हो एक मशीन के लिए, उसमें जो है आप कनेक्ट करके इस मशीन को चलाओ। अब देख सकते हो इसका जो केबल सेटअप है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ये हमारी पावर सप्लाई लगी हुई है इसके साइड में। इसके हम प्रॉफिट वगैरह पे हर चीज़ पे आएंगे, बात करेंगे। ये हमारी पीछे की साइड है मशीन की, जहाँ से हमारी गर्म हवा निकलती है। फ्रंट साइड ये है जहाँ पे हमने लैन केबल कनेक्ट की हुई है। तो गाइस, आप देख सकते हो ये मशीन की स्पेसिफिकेशन है। ये मशीन के हैवी हैश एल्गोरिथम पे चलती है। 3400 वाट का पावर कंजम्पशन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जब प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं, ये मशीन जो है कैस्पा कॉइन की, बुगना और सेड्रा कॉइन की माइनिंग करती है के हैवी हैश एल्गोरिथम पे। इसका जो 24 घंटे में जो एक कॉइन बना देती है, 244 कॉइन बना देती है आज की तारीख के हिसाब से, जो है 16/7/2024। जो टोटल रेवेन्यू है 24 घंटे का जो मशीन जनरेट करती है वो $43.80 का जनरेट करती है। बिजली का बिल ₹7 यूनिट भरने के बाद आपका जो है $8 के आसपास जो है आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है। और जो नेट प्रॉफिट बचता है वो लगभग $35.64 के आसपास बचता है, जो कि आपका USDT में आएगा। USDT का जो रेट है वो लगभग ₹90 के आसपास चल रहा है आजकल इंडिया में। तो हमारा जो है ₹3200 के आसपास की माइनिंग कर देगी एक महीने में बिजली का बिल भर के। यदि हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा ₹96,000 की माइनिंग कर देगी हर महीने बिजली का बिल भरने के बाद। और ये डेटा जो है हमारी सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है। ये नंबर जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं नेटवर्क में चेंजेस आने के साथ साथ, तो आप इसको कंटिन्यू मॉनिटर कर सकते हैं। इस मशीन चलाने के लिए आपको चाहिए पूल, जहाँ पे आप अपनी मशीन को कनेक्ट करोगे और पूल से ही आपकी पेमेंट आती है आपके वॉलेट एड्रेस में। तो ये कैस्पा जो के हैवी हैश एल्गोरिथम है उस पर माइनिंग होने वाले ये कॉइन्स हैं हमारे, कैस्पा, सेड्रा, बुगना और DMG कॉइन, बिटमेन, ये दुनिया भर के कॉइन है, बिटमीम। तो ये उनके पूल है। टॉप जो 3 कॉइन है वो कैस्पा, सेड्रा और बुगना ही है। अब गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, अब हमारे पास इसमें ना 3 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम जो है F2 पूल यूज़ करके डायरेक्टली हम ये जो URL है, माइनिंग URL, इनको यूज़ करके अपना डायरेक्टली कैस्पा की माइनिंग कर सकते हैं इस मशीन से। या फिर जो है हम इस मशीन को नाइस हैश पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसके नाइस हैश के माइनिंग URL है, ताकि जो है हमें पेमेंट डायरेक्टली BTC में कन्वर्ट करके देता रहेगा नाइस हैश। अब नाइस हैश का क्या काम है? नाइस हैश का ये काम है कि जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन होगा इस मशीन पे, वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके माइन करता रहेगा और हमें BTC में पेमेंट करता रहेगा। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कॉइन हमें जो है ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। कभी हम इस कॉइन पे चेंज करेंगे, कभी उस कॉइन पे चेंज करेंगे। तो नाइस हैश इस काम को ऑटोमेटिकली कर लेगा और हमें BTC में जो है पेमेंट करता रहेगा। तो गाइस, अब इस मशीन को चलाने के लिए सबसे पहले आपने जैसे लैन केबल वगैरह हमने सब कुछ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, एडवांस IP स्कैनर, IP पता करने के लिए माइनर की। यदि आप फ़ोन से कर रहे हो तो आपको एक फिंग नेटवर्क
टूल के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो माइनर की आईपी पता करने के लिए। अब इस माइनर की आईपी मैंने पता कर ली थी, ये 192.168.0.152 है, और इसी को जो है मैं अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र में जो है ओपन कर सकता हूँ। इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है आइस रिवर की मशीन्स का, वो एडमिन होता है, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होता है। तो गाइज़ ये अभी मैंने मशीन जो है चलाई थी थोड़ी देर के लिए, अभी मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ और इस वाले पेज को मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। सो गाइज़ यदि आपको हमारे से माइनिंग मशीन परचेज़ करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो vikrantech.com, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करो, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट कर दो और हमारी जो टीम है वो आप तक रीच कर लेगी ऑटोमेटिकली। यदि आपको माइनिंग शुरू करनी है और उसके लिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग और पूरा टेक्निकल कन्फिगरेशन वगैरह सब कुछ समझना है तो हम आपके लिए रेडी हैं करने के लिए, और बेस्ट सर्विसेज हम आपको उसके रिलेटेड में जो है प्रोवाइड करेंगे। हमें माइनिंग मशीन इंपोर्ट बिज़नेस में लगभग पिछले 8-9 साल हो चुके हैं और कंटिन्यूसली जो है हम ऑल ओवर इंडिया और ग्लोब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइज़ आप हमें रीच आउट कर सकते हो, यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पे बेस्ट सर्विस मिलेगी माइनिंग मशीन के रिलेटेड, और प्रॉपर जो है हम उसको मैं आपको गाइड करेंगे, लेके इलेक्ट्रिकल फिटिंग से लेके टेक्निकल तक, और आपके जो है फर्दर कॉइन वगैरह यदि आपको ट्रेडिंग करनी है, सेल वगैरह करने हैं तो आप उसके लिए भी जो है हमें कंसल्ट कर सकते हो। अब हम अपनी ये आइस रिवर KS5L को ऑन कर देते हैं और माइनर का जो आईपी वाला पेज खोला था उसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो गाइस जैसे हमने यहाँ से मशीन को ऑन कर दिया तो लगभग 1-1.5 मिनट के बाद जो है हम आईपी को रिफ़्रेश करके देखेंगे वहाँ पे हमारा क्या दिखाता है। जैसे कि देख सकते हो ये फिंग वाली ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। तो इसको यदि आप खोल के यहाँ से रिफ़्रेश करोगे या स्कैन नेटवर्क करोगे तो आपके वाईफाई राउटर से जितने भी डिवाइसेस होंगे सबकी ये आईपी बता देगा। तो जो आइस रिवर की मशीन होगी उसकी या तो जेनरिक लिखी होगी या फिर जो है आइस रिवर ही लिखा होगा। तो ये हमारी 192.168.0.152 ये हमने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जो है अपना ओपन कर लिया है। जिस टाइम पे आप आईपी पता करने का ट्राई कर रहे हो तो आप ये मेक श्योर कर लो आपका फ़ोन और आपकी मशीन सेम वाईफाई राउटर से जो है कनेक्टेड रहे। हमारा जो है जैसे ही मैंने पेज रिफ़्रेश किया तो वो लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है। तो जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड लॉगिन होता है इसका एडमिन, और जो पासवर्ड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आप साइन इन करोगे तो आप कंसोल पेज पे पहुंच जाओगे इसके आइस रिवर के। तो यहाँ से आपको क्या जाना है, ये माइनर पहले आपको जो है कंपनी की सेटिंग पे चलता हुआ मिलेगा, उससे आपको क्या करना है उसको हटा के उसको अपनी सेटिंग पे करना है। तो माइनिंग सेटिंग खोलनी है आपको, और यहाँ पे जो ये हमारे माइनिंग URL है नाइस हैश के डालने हैं। नाइस हैश के माइनिंग URL आपको जो है नाइस हैश की वेबसाइट पे मिलेंगे। नाइस हैश का ये वाला URL आप ट्राई कर सकते हो, nicehash.com/generator, और ये हमारे जो है माइनिंग URL है जो मैंने अपने मशीन के उसमें डैशबोर्ड में पेस्ट किए हैं सेटिंग्स में। यहाँ पे जो है ये मेरा वर्कर नेम /वॉलेट में जो है मैंने यहाँ पे अपना BTC का वॉलेट एड्रेस डाल दिया है, क्योंकि नाइस हैश वाले मुझे BTC में पेमेंट करेंगे। .KS5L लिख दिया है। अब इस माइनर को नाइस हैश पे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा कि मेरी मशीन चल रही है नहीं चल रही है देखने के लिए। जाके nicehash.com पे जाऊँगा, फिर माइनर स्टैट पे जाके मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद ये बोलेगा कि आप अपना यहाँ पे वॉलेट एड्रेस एंटर कर दो। तो जो मेरा BTC का वॉलेट एड्रेस मैंने डाला था वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब आप दो तरह के BTC वॉलेट एड्रेस डाल सकते हो। एक तो डाल सकते हो आप अपना या तो नाइस हैश का ही BTC वॉलेट एड्रेस डाल दो जो N से शुरू होता है, या फिर जो है आप अपना एक्सटर्नल वॉलेट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे बाइनेंस का BTC वॉलेट एड्रेस, या फिर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर एक्सचेंज का वॉलेट भी आप कॉपी करके डाल सकते हो। तो ये दिखा रहा है मेरी मशीन KS5L, एक मशीन मेरी एक्टिव है। टोटल कितने बिटकॉइन बने हैं वो सारा जो डेटा है यहाँ पे जब 24 घंटे हमारी मशीन चलेगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कितनी माइनिंग हुई है कितना क्या है सारा सिस्टम इधर अपना दिखेगा अपने को। आपको हार्डवेयर वॉलेट परचेज़ करना है तो टेंजम 2.0 आप हमारे से परचेज़ कर सकते हो। ये मेड इन स्विट्ज़रलैंड है और इसके अंदर 3 कार्ड आते हैं। लिमिटेड एडिशन वाइट कलर का कार्ड है, 7,000 रुपये का इसका रेट है। यदि आपको अपने क्रिप्टो सेफ रखने हैं और लॉन्ग टर्म तक रखने हैं तो ये मस्ट हैव है। जैसे कि आप देख सकते हो माइनर चलते हुए सिर्फ 3 ही मिनट हुई है, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिखा रहा हमारा, बिल्कुल 0 दिखा रहा है सब कुछ, क्योंकि माइनर जो है अभी बूट हो रहा है और उसका डेटा यहाँ पे आने में कुछ मिनट का टाइम लगेगा। ये देख सकते हो आप माइनर के अंदर ना ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। PSU पे सॉलिड ग्रीन लाइट रहती है जब माइनर ओके काम कर रहा होता है, और जो इधर ये हमारी जो मशीन का फ्रंट पैनल है इसके ऊपर ग्रीन लाइट ब्लिंक करती रहती है। गाइज मेक श्योर कर लो कि आपकी मशीन जो है प्रॉपरली गर्म हवा आपकी डायरेक्टली विंडो से बाहर निकले, और आप जो है अपनी मशीन का डस्ट जो है रेगुलरली क्लीन करो, उसके अंदर मॉइस्चर ना जान दो। यदि आपने ये चीज़ 2-3 चीज़ें संभाल ली तो आपकी मशीन बिल्कुल बिंदास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो आपको माइनिंग मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फ़ैन, कंट्रोल बोर्ड, पावर सप्लाई। ऐसा नहीं है कि आइस रिवर के ही रहेंगे, सभी मशीन्स के सभी मॉडल के हमारे पास फ़ैन वगैरह सब कुछ रहता है।
पावर सप्लाई के फ़ैन हो गए, कनेक्टर प्लेट होगी, कंट्रोल बोर्ड हो गए, पावर सप्लाई होगी, सिग्नल केबल होगी, तो हमारे पास सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। आप देख सकते हो लगभग 6.5 मिनट के 7 मिनट के बाद जो है मशीन के डैशबोर्ड पे हमारा डेटा आ गया है। वो मशीन 11,200 गीगा हैश मतलब 11.2 टेरा हैश पे ऑलरेडी पहुँच चुकी है। तो लगभग मशीन को 12-14 मिनट लगते हैं कंप्लीट हैश रेट जाने में। ये हमारी मशीन के अंदर हमारे 3 माइनिंग URL डाले हुए हैं हमने नाइस हैश के। ये हमारा BTC वॉलेट एड्रेस है, ये कनेक्टेड है। यदि इन 3 में से एक भी कनेक्टेड है तो हमारी माइनिंग ओके चल रही है, हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो है हमारे यहाँ पे 3 हैश बोर्ड दिए हुए हैं, 1, 2, 3, सबके टेम्परेचर नॉर्मल है और फ़ैन स्पीड भी जो है हमारी बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये माइनर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अभी हम माइनर के पास चलते हैं, एक बार हैशिंग करते वक्त कैसा दिखता है देखते हैं। तो गाइस जैसे देख सकते हो माइनर की ग्रीन लाइट अपना जल रही है सामने से, गर्म हवा हमारी इधर से बाहर निकल रही है। गर्म हवा बाहर निकलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यदि आपको ये माइनर परचेज़ करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारी वेबसाइट के थ्रू, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपना नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का। थैंक यू सो मच।